Hello students, last time we started discussing about some of the flagship programs of the Government of India which were under the Sustainable Development Goals. Now the three main flagship programs which the Government of India has introduced as a part of Sustainable Development Goals in India. The first one, children, I told you was Make in India. Now, Make in India was basically meant to assist the domestic companies as well as the foreign companies to manufacture their products in India. And as you all know, the scheme was initiated or it was launched by our own Prime Minister, Mr. Narendra Modi, on 25th September 2014. And the key purpose why this Make in India initiative was launched was to create a healthy environment and to attract investments in 25 focus sectors. और ज़्यादातर ये जो sectors थे बच्चे लोग, they were related to automobiles, auto components, aviation, biotechnology, chemicals, etc. The question arises, children, like what are the main objectives that the government had in front of it when they initiated or launched this particular scheme? The first objective, children, was we wanted the GDP of a country, especially in the manufacturing sector, to grow at least by 25% by the year 2020. अच्छा, second वाला objective ये था बच्चों लोग कि we wanted to increase the investments in the manufacturing sector and in order to increase the productive capacity of a manufacturing sector. अच्छा, फिर बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना ये हमारा और एक ऑब्जेक्टिव था बच्चों लोग. लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन. अच्छा, अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो वांटेड टू फोकस और वी वांटेड टू गिव अ बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप्स. अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का जो रैंकिंग है बच्चों लोग, उसको भी हम लोग इंप्रूव करना चाहते थे. एंड वेन एवर द वर्ल्ड फील्स दैट वी वांट टू इन्वेस्ट, they should feel that India should be preferred investment destination. मतलब उनको लगना चाहिए कि इंडिया एक preferred investment destination है. अच्छा, और as far as manufacturing is concerned, children, we wanted to make India as a global manufacturing hub and designing का भी hub बनाना चाहते थे, जहाँ पे नए नए products डिजाइन किए जाएंगे, at the same time, children, production भी होगा. अच्छा, this would further enhance skill development, innovation, and high quality products would be available from India. And at the same time, children, we just wanted to for those intellectual ministries, right? You know, मतलब for example, that intellectual properties to develop them. अच्छा, अब ये मेक इन इंडिया के कैंपेन के तहत बच्चों लोग, the foreign direct investment flow procedures have been simplified. अभी आसान किया गया बच्चों लोग फॉरेन के कंपनीज को, फॉरेन के कॉर्पोरेट्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना पहले की जितना मुश्किल नहीं है. और ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में बच्चों लोग वी हैव सीन दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दे हैव मेड इन डेवलपिंग सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट दैट मेक इन इंडिया. अच्छा, लेकिन फिर जब भी बच्चों लोग किसी कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का तो परमिशन है ही, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स दे नीड टू कोलैबोरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट and the different ministries, and the final call will be taken by the state governments. Okay. Now these were the objectives why we initiated Make in India. Now the question arises कि like what have been the achievements till date, कि क्या क्या अचीव किया हमने इस फील्ड में. तो लेट्स सी सम ऑफ द अचीवमेंट्स. सबसे पहला पॉइंट है बच्चों लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2017 तक इंडिया में बच्चों लोग जो एफडीआई फ्लो हुआ है, सो वी गॉट 160.79 बिलियन यूएस डॉलर्स. ये बच्चों लोग दिस इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्लोइंग इन इंडिया. And World Economic Outlook and United Nations World Economic Situation Prospects 2017, India is the fastest growing major economy in the world. Fastest growing major economy in the world.
और ज्यादातर जो सेक्टर्स है चलो जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी एफडीआई के लिए ओपन अप कर दिए, उसमें तो एक तो डिफेंस आता है, डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑल दीज सेक्टर्स हैव बीन ओपन अप टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ओके, तो ये पहला ग्रोथ या फिर पहला अचीवमेंट हुआ बच्चों कि 160.79 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट्स कमिंग टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन सेज दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस according to World Bank's group doing business 2018 report, India rank has jumped 30 places. India now ranks 100th in the world bank's ease of doing business ranking in 190 countries. So almost like for example 130 से लेकर हम लोग 100 तक आके पहुंच गए, तो इसका मतलब 30 places improve किया है। नहीं तो in India present like for example it's complicated procedures and those formalities, and the companies, they don't feel much easy or comfortable to do business. But presently the things have changed, children. Now the world looks at India as a preferred investment destination, and India's ranking in doing business or ease of doing business has increased almost 30 places. So now people can come to India wholeheartedly and carry on business with a lot of ease. Third one children, specific sector achievements क्या क्या है देखते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन के some of the sector specific achievements are FDI, foreign direct investment in aviation has almost increased how many times? 6 times। तो एविएशन में FDI 6 times increase हो चुका है बच्चों लोग। अच्छा, हमने अपने खुद के देश के अंदर इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए बच्चों लोग। जो प्रोडक्ट्स पहले इंपोर्ट किए जाते थे फॉरेन कंट्री से, आज वो प्रोडक्ट्स हम लोग खुद ही बनाते हैं हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। अच्छा, 7 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स आर मेड ऑपरेशनल। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, दे आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन MIDC जैसे रहते हैं, बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हब होता है ना फूड प्रोसेसिंग, जैसे पतंजलि का फूड प्रोसेसिंग पार्क आता है बच्चों लोग। सो दे गॉट आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन वी टॉक इन डिटेल अबाउट एग्रीकल्चर, व्हाट आर दिस मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स। देन 1.5 lakh micro, small and medium enterprise units are set up and they are given in employment to almost 11 lakh people। बच्चों लोग 1.5 लाख नए छोटे मोटे इंडस्ट्रीज के यूनिट सेटअप किए गए, जिन्होंने 11 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज ऑलमोस्ट ग्रोन बाय 29%, मेडिसिन्स राइट, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज ग्रोन बाय 5.8%। अच्छा, अब ये बहुत सारे अचीवमेंट्स तो ऑब्वियसली है ही। So despite the achievements, much of the objectives of the MI have not been achieved since it was launched in 2014. Some of the manufacturing firms had to close down business due to multiple problems like falling commodity prices, insufficient increase in demand, and difficulty in getting credit. So see, problems would always be there. और देखो बच्चों लोग, हर एक चीज तुम ये नहीं सोच सकते कि हम लोग इंडिया में ही बनाएंगे। यू नीड टू डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज ना। आत्मनिर्भर बच्चों लोग ये इट इज पॉसिबल ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज फॉर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू डिपेंड अपॉन, इट्स लाइक गिव एंड टेक, ग्रो टुगेदर। बच्चों लोग, फॉरेन कंट्रीज हमसे जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो सबके सब प्रोडक्ट्स अगर वो लोग खुद ही बनाना चालू कर दिए तो फिर सवाल आता है कि इंडिया किसको बेचेगा। तो इंडिया ने भी अगर सब कुछ खुद ही बनाना चालू किया तो सवाल आता है कि दुनिया किसको बेचेगा, राइट? Yes. The next initiative that we have children, Skill India. Date क्या है देखो इसका, July 2015 this is the time when it was launched। अच्छा, इनका एम था 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने का अलग अलग स्किल्स में बाय 2020। और ये जो स्किल इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव था, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप फॉर डेवलपिंग द पोटेंशियल टैलेंट ऑफ द यूथ and enhance their capacity to be either employed or self-employed। बच्चों लोग, इंडियंस बेसिकली लाइक एग्जाम्पल लाइक हम लोग थोड़े से लेजी हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो पोटेंशियल टैलेंट है यूथ के अंदर, उनको थोड़ा एनहांस करने की जरूरत है, ताकि कम से कम वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो जाए या तो फिर कहीं पे एम्प्लॉयड तो हो जाए। तो व्हाट इज दिस स्किल डेवलपमेंट और स्किल इंडिया?
The first point, children, National Skill Development Mission. The mission has been developed to create convergence across sectors and state in terms of skill training activities. तो अलग अलग सेक्टर्स को हमने कॉन्वर्ज किया है और अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के अंदर ट्रेनिंग देके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक्टिविटीज इनिशिएट किए गए बच्चों लोग. सेकेंडली, द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, कॉमन स्किलिंग स्टैंडर्ड्स एंड अलाइनिंग ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री. तो जहां कहां पे बच्चों कौशल्य विकास बोलते हैं बच्चों इसको, तो जहां कहां पे भी कौशल्य विकास के ट्रेनिंग्स चलते हैं तो सबके सब एक्टिविटीज को हम लोग अलाइन करते हैं, ब्रिंग देम अंडर वन रूफ वी कैन से. ओके, देन वी हैव गॉट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. व्हाट इज दैट? दिस इज अ स्कीम for skill training of youth to be implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship through the National Skill Development Corporation. तो बच्चों बहुत सारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सबके साथ में गवर्नमेंट टाई अप करती है. अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेने का रहेगा तो एक कंप्यूटर कोर्स होता है बच्चों लोग, तो स्किल इंडिया के साथ में अगर टाई अप होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री में ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं. अच्छा, और जो भी पैसा रहता है गवर्नमेंट विल बी पेइंग टू दैट computer training institute we can say. Acha, it comes in almost everywhere children, that is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Acha, then we got skill loan scheme. इस स्कीम को बच्चों 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था in order to support the youth who wish to go through skill training program in the country. स्किल ट्रेनिंग के लिए बच्चों लोग अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अमाउंट लाइक लोन दिया जाता है. 5,000 से लेकर 15,000 तक का लोन मिलता है ऑन द कोर्सेज हैविंग अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ 7 years. तो बाद में जब आपको जॉब मिलेगा तो आप 7 साल में अमाउंट रीपे कर सकते हो. और सिंपल रेट ऑफ 11% या फिर 12% होता है चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी. राइट, तो अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए तो भी गवर्नमेंट अवेलेबल करा के देती है. And the third flagship program children that we speak about is Invest India. Now what is that? It provides sector specific and state specific information to foreign investors. An investor facilitation cell has been launched on the Invest India portal in September 2015 to guide and assist the investors. Whenever foreign countries or foreign corporates they wish to invest in India, the question arises like they might not have much of information, they do not have proper guidance. So we have introduced what is called an investor facilitation cell. Invest India का जो पोर्टल है वेबसाइट उसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको हर एक सेक्टर के बारे में सब इंफॉर्मेशन मिलता है ताकि आप आसानी से आगे बढ़ के इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सको. राइट, so that's something related to Invest India. Now here children we came across certain points children that we studied in this chapter. क्या क्या कवर करता है उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना जरा. सबसे पहली बात कि we started with the topic that is sustainable development goal. स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने आपको. अच्छा, when we spoke about the introduction children we spoke about economic growth and economic development, right? Economic growth और economic development का conflict देखा था. And then we moved on to sustainable development. Sustainable development के कुछ goals, 17 अलग अलग goals, उसको याद रखने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था उस स्टोरी के जरिए. राइट, अच्छा, इन द लास्ट लेक्चर चिल्ड्रन मैंने आपको कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनिशिएटिव्स पढ़ाए थे जिसमें एंडिंग पॉवर्टी, फिर एंडिंग हंगर, हेल्दी लाइफ, ओके, जेंडर इक्वालिटी, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ये सब पढ़ाया था. और आज के लेक्चर में बच्चे लोग वी हैव सीन अबाउट द गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स. ये 3 प्रोग्राम्स आपको अच्छे से याद रखना है. कौन कौन से बच्चे लोग? मेक इन इंडिया, अच्छा, देन वी से लाइक स्किल इंडिया, एंड द थर्ड वन चिल्ड्रन is basically related to Invest India. These are the flagship programs of the government of India, right? Now we were almost towards the third module children.
फर्स्ट वाला मॉडल जो हमने देखा था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. सेकेंड वाला था बच्चों लोग हेल्थ और एजुकेशन के लिए. ओके, आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज schemes regarding education and health which I have not taught you. And the third model, children, that we spoke about was related to the sustainable development goals, right? Now the next chapter that is coming up in line, as you can see on the screen, children, that's the National Agricultural Policy 2000. So in the coming lecture, children, I will start with the National Agricultural Policy 2000. जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए थे, अच्छा, हर एक मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सब सेक्टर्स में हमने रिफॉर्म देखे. अभी वक्त आ गया था कि लाइक एग्रीकल्चर को भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत थी. सो व्हाट वर द पॉलिसी चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया. सो विल सी यू सून विद द लेक्चर दैट वी हैव, चिल्ड्रन, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000. और एक ऐसा क्वेश्चन बच्चों जो हमेशा एग्जाम में कवर किया ही जाता है. Okay, so that's all for today. Thank you very much. See you in the next lecture with topic number 5.